Hello friends, today we are learning Python if-else condition. First of all, what is Python if statement? The if statement is the most simple decision making statement. It is used to decide whether a certain statement or block of statement will be executed or not. Python if statement क्या है? It's a simple decision making statement. हम कब इसका यूज करेंगे? जब हमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन करना है या फिर सर्टेन स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करना है, तब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने i इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया है, राइट. फिर मैंने कंडीशंस दी है कि इफ i इज ग्रेटर देन 50, i में कितना है मेरा नंबर 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 15. इफ yes then see here in example. See here, I have declared here I is equals to 10, right? And here I have given see here I have give I is equals to 10, right? And here I have give the conditions I greater than 15. Okay, then I में कितना है नंबर मेरा 10. So 10 is greater than 15. If yes, then print 10 is less than 15, right? अगर ये कंडीशंस में आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू ही नहीं है, तो कंडीशन से बाहर निकल जाएगा और क्या बोलेगे, क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट आई एम नॉट इन अ इफ. So there are many types of control flow in a Python. Python control flow statements are as follows here: the if statement, the if else statement, the nested if statement, and the if else ladder. ठीक है. Now one by one we will see with the practical example. Let's start. First of all, how to declare a Python's if statement. I am typing here. Here I am declaring first of all variable. So my variable name is a equal to 50. I have given value here 50. And next my variable is b is equals to 250. I am giving here conditions now. Use the if keyword. If b is greater than a, then print b is greater than a, right? Okay, let's check the code. Okay, see here you can see b is greater than a because b की वैल्यू क्या है 250 and a की वैल्यू क्या है 50, right? So b is greater than a. Now see here I have leave space here. Here you can see, okay, what is this? This is the indentations. क्या है वो? Indentations. Now what is indentations? So Python relies on indentations यानी white space at the beginning of a line to define scope in the code. In the other programming language often use a curly brackets for this purpose. हम C यूज करते थे सपोज, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, if के नीचे यहाँ पर curly brackets यूज करते थे, right? But in the Python you have to leave a white space here. Let's suppose ये प्रिंट स्टेटमेंट है, मैं उसको एग्जैक्ट इफ स्टेटमेंट के नीचे ले रही हूँ, राइट, विदाउट इंडेंटेशंस. तो व्हाट दे आर डूइंग, दिस शोज एन एरर. ये क्या डिस्प्ले करेगा, एरर डिस्प्ले करेगा. व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट गिव अ स्पेस हियर. वाइट स्पेस मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पर एरर आएगा. ये जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो ये एरर डिस्प्ले करेगा. सी, मैं प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो इंडेंटेशंस एरर. यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर स्पेस रखना है. हम कर्ली ब्रैकेट्स करते थे, राइट, पहले इफ के नीचे कर्ली ब्रैकेट्स करते थे, अब यहाँ पर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर व्हाइट स्पेस देना जरूरी है, इंडेंटेशंस देना जरूरी है. नाउ वी आर यूजिंग इलिफ स्टेटमेंट.
इफ स्टेटमेंट यानी क्या, सी में हम क्या करते थे, एल्स इफ स्टेटमेंट हम करते थे। एक कंडीशंस मैंने दिया है इफ, राइट, और नाउ आई वांट टू गिव अनदर कंडीशंस हियर, देन व्हिच स्टेटमेंट आई विल यूज हियर इन द पाइथन, इल इफ क्या यूज करेंगे, इल इफ। इन द सी व्हिच स्टेटमेंट वी आर यूजिंग देयर, else if, right? So how you can using elif? First of all, what is elif? The elif keywords meaning that if the previous conditions were not true, then try the next conditions here. Okay, then how you can declare elif conditions? See here, let's suppose I am changing the value here now. A is equals to 44, B is equals to 44, and I am changing the conditions here. If A is greater than B, okay, if A is greater than B, then क्या प्रिंट होना चाहिए, A is greater than B। अगर A है वो B से बड़ा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, A is greater than B। Now I am giving here if conditions here, okay, so see here I am giving here indentations, if, use the keyword if and give the conditions here. If A is equal to B, then print A and B both are same, A and B are equal। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, इलिफ स्टेटमेंट का यूज किया है, इलिफ कीवर्ड्स का यूज किया है। नाउ लेट्स चेक द कोड। See now, here you can see A and B are equal। देखो मैंने क्या किया है, I have declared here A is equals to 44 and B is equals to 44, right? अब यहाँ पर देखो I have give conditions A, if A is greater than B, then क्या होना चाहिए, A is greater than B, राइट, बट यहाँ पर तो दोनों इक्वल है, ये कंडीशंस तो मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सी तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा इफ कंडीशंस में, इफ A is equal to B, if yes then क्या करेगा, प्रिंट A and B are equal। Okay, now we are using else block। First of all, what is else block? The else keyword catches anything which isn't caught by the preceding conditions। else का काम क्या है, जो आगे जो ब्लॉक से यहाँ पर हमने दिया है, अगर वो पार्ट फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, else पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज आई एम चेंजिंग अगेन वैल्यू हियर, a is equals to 200, B is 33, and again changing I am conditions here, if B is greater than A, then print B is greater than A। अगर वो दोनों सेम है, एल्स इफ में सेम कंडीशन है, अगर A is equal to B, then A and B are equal। चलो अब वो भी नहीं है तो क्या करेगा, नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। ठीक है, सो एल्स, यूज द कीवर्ड एल्स, प्रिंट A is greater than B। ओके, सी हियर, यहाँ पर अगेन मैंने व्हाइट स्पेस का ध्यान रखा है। जैसे आप सी में यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स करते थे, यहाँ पर आपको व्हाइट स्पेस देना है तो ही ये इफ ब्लॉक है वो रन हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पर आपको एरर दिखाएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक द कोड। सी हियर, यू कैन सी ए इज ग्रेटर देन बी। देखो यहाँ पर कौन सा ब्लॉक रन हुआ, एल्स पार्ट का। व्हाई, because I have given value A equal to 200 and B equal to 33, right? And first conditions I am giving here, if B is greater than A, then print B is greater than A। अब वो नहीं है पार्ट, मेरा फर्स्ट ब्लॉक गलत हो रहा है तो सेकंड कंडीशन में आएगा, एल्स इफ क्या A is equal to B, A है वो B के बराबर है, then print A and B are equal।
अगर अब ये पार्ट भी गलत है, यानी फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक भी गलत है, तो कौन से पार्ट में जाएगा? नेक्स्ट है वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। इन प्रिंट क्या कर देगा? अब ये दोनों में से कोई भी सही नहीं, या तो बी ग्रेटर नहीं है या तो दोनों इक्वल नहीं है, तो अब डेफिनेटली कौन सा ग्रेटर है? ए ग्रेटर होना चाहिए, राइट? तो एल्स ब्लॉक में क्या करेंगे प्रिंट? वो ए इज ग्रेटर देन बी। सो हियर यू कैन सी ए इज ग्रेटर देन बी। नाउ वी आर लर्निंग शॉर्ट हैंड इफ। अभी हमने क्या किया? इफ कंडीशंस को आपने यहाँ पर देखा, मैंने इफ कंडीशन से वो दिया, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट दिया। एल्स इफ यूज किया तो भी मैंने इफ स्टेटमेंट दिया, उसके बाद कंडीशंस दिए, यानी मैं वन बाय वन लाइन में मैं इफ कंडीशन से वो यूज करे जा रही हूँ, ठीक है? बट इफ यू वांट टू यूज शॉर्ट हैंड इफ, देन हाउ यू कैन डू? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज शॉर्ट हैंड इफ? If you have only one statement to execute, you can put it on the same line as the if statement. How you can do? See here. ये जो हमने 3 लाइन का कोड बनाया है, वो सेम कोड हमें अगर 1 लाइन में यूज करना है, एट दैट टाइम वी आर डूइंग हियर, वी आर यूजिंग शॉर्ट हैंड इफ. हाउ यू कैन डू? सी. ओके, नाउ आई एम यूजिंग शॉर्ट हैंड इफ. आगे आपने देखा इन द प्रीवियस कोड देयर इज अ 2 लाइन्स ऑफ कोड, 3 लाइन्स ऑफ कोड, राइट? हियर आई एम यूजिंग ओनली वन स्टेटमेंट लाइन कोड. सी how you can using the shorthand if. First of all, give the conditions. If a is greater than b, then क्या करना है हमें? प्रिंट a is greater than b, राइट? यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी शॉर्ट हैंड इफ का ही यूज किया है, ठीक है? तो लेट्स चेक द कोड. सी, यू कैन सी द आउटपुट हियर, ए इज ग्रेटर देन बी. आगे मैंने सेम कोड को क्या किया था? मैंने यहाँ यही कोड को मैंने दूसरी लाइन में प्रेजेंट किया था. ये सेम कोड को मैं अगर 1 लाइन में स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो ये हो सकता है यूजिंग अ शॉर्ट हैंड इफ, ठीक है? Now we are doing shorthand if else conditions. ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया है? ओनली if conditions का वन स्टेटमेंट में यूज किया है. Now we are using shorthand if else conditions. आगे हमने वही सेम कोड 2 लाइन्स में रिप्रेजेंट किया था. अब हम सेम लाइन कोड को एक लाइन में कर देंगे. कैसे करेंगे? सी, अब मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रही हूँ. ए को कर रही हूँ 22 एंड बी को मैंने कर दिया है 33. Now I am giving here conditions. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है? प्रिंट ए. यहाँ पर हम क्या करेंगे? थोड़ा ऑपोजिट स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे, ठीक है? पहले हम कंडीशंस देते थे, फिर स्टेटमेंट को लिखते थे. यहाँ शॉर्ट हैंड इफ एस में क्या करना है? पहले मैं प्रिंट करूंगी प्रिंट ए. कब वो प्रिंट ए करेगा? नाउ गिव द कंडीशंस. प्रिंट ए इफ a is greater than b. आया समझ में? अब मैंने कहा कंडीशंस का यूज किया है? प्रिंट a if a is greater than b. अगर ये सही नहीं है, then go to the else part and print b. Now let's check the code. Okay, see here in the output, you can see the B is in the output, right? हमारी कंडीशंस क्या थी कि A ग्रेटर देन B हो तो A प्रिंट करे, अदरवाइज क्या होना चाहिए? प्रिंट B, राइट? सो हमारी बिग नंबर किस में है? B के अंदर है 33, राइट? तो प्रिंट क्या होना चाहिए? B. ओके. So this technique is known as a ternary operators or a conditional expressions. You can also give a multiple else statement on the same line. यहाँ पर आप multiple statement है वो भी दे सकते हो. कैसे देख सकते हो? Let's see. Now I am changing the value of variable. A is equals to 100. B is equal to again 100. And now I am giving multiple conditions here. See, print A if A is greater than B. Okay. Else print equal to.
या तो दोनों सेम है। इफ A is equal to B, else print B। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, आगे मैंने सेम लाइन कोड को मैंने टोटल 3 या 4 लाइन में रिप्रेजेंट किया था, राइट। यहाँ पर एक ही लाइन में कोड दिया है, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, प्रिंट ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। ए ग्रेटर देन बी से है तो प्रिंट ए करना है, राइट। ओके, यहाँ पर हमारी वैल्यू सेम है तो ये पार्ट भी गलत हो जाएगा। एल्स, एल्स के अंदर क्या किया, वहां पर हम क्या करते थे, इलिफ यूज करते थे। एल्स इफ इलिफ मैंने दिया था, राइट, एक साथ में। अब यहाँ उन दोनों को अलग अलग करना है। एल्स प्रिंट इक्वल टू इफ ए इक्वल टू बी, राइट। अब ये दोनों पार्ट गलत है, एल्स प्रिंट बी। लेट्स चेक द कोड। ओके, सी हियर इन द आउटपुट, हियर यू कैन सी इक्वल साइन। ओके, हमारा कौन सा पार्ट सही था एक्चुअल में कि a इज इक्वल टू b होना चाहिए, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एल्स के बाद इफ कंडीशंस दिया था, बट इलिफ की जगह मैंने इलिफ को एल्स एंड इफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इफ यू आर यूजिंग द शॉर्ट हैंड इफ एल्स, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज एल्स फिर print statement, and after that you have to give a if conditions. Okay, now we are seeing here nested if. First of all, what is nested if? You can have if statement inside if statement, this is called a nested if statement। if statement के अंदर आप एक और if statement दे रहे हो तो that is called a nested if statement। ठीक है, how you can use this nested if statement, see here। Let's suppose I am giving here x equal to 30, and now I am giving here conditions। if x is greater than 10, then print it is above 10। Now I am giving again the conditions here inside the if conditions. Okay, so this is a nested if statement। If x is greater than 20, then print and also above 20। या तो वो above 10 है या फिर above 10 and also above 20 है। ओके, अदरवाइज क्या करना है, we have to run the else part and type here print। अगर सारी कंडीशंस हमारी false है then not above 40, right। let's check the code। Okay, let's see in the example, here you can see above 10 and also above 20, right। so first I have give here conditions if x is greater than 10, अगर x 10 से बड़ा है, right। यहाँ पर मैंने क्या दिया है 30, अगर 30 is greater than 10, right। x के अंदर क्या है 30, so 30 is greater than 10, then क्या प्रिंट होना चाहिए above 10। अब वो नेस्टेड इफ में आएगा यहाँ पर और वो चेक करेंगे अगेन कंडीशंस, x इज ग्रेटर देन 20। अब 30 है क्या, वो 20 से भी बड़ा है, यस, देन प्रिंट एंड ऑल्सो अबाउट 10, यानी अबाउट 10 एंड ऑल्सो अबाउ 20, राइट। अदरवाइज एस पार्ट में रन होगा कि प्रिंट नॉट अबाउ 40, वो 40 के अबाउ नहीं है। सो आप यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड अ nested if statement। Now here we are saying past statement। Okay, the past, what is first of all past statement here? If statement can't be empty, but if you for some reasons have an if statement with no content, at that time put in the past statement to avoid getting an error। आप जब कंडीशंस दे रहे हो यहाँ पर, अब आपको कोई चीज प्रिंट नहीं करवानी है, ठीक है, तो एट दैट टाइम आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, पास्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो मैंने a इज इक्वल टू 44 लिया है, b इज इक्वल टू 100 लिया है, एंड हियर आई गिव कंडीशंस b इज ग्रेटर देन a।
अब है तो हमें क्या करना है, प्रिंट या बी करना है, या फिर एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट ए करेंगे, राइट। बट मुझे कोई कंटेंट है वो लिखना नहीं है, मुझे कोई स्टेटमेंट है वो रन करना नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं दे दूंगी PASS पास कीवर्ड। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो यहाँ पर एरर नहीं आएगी। लेट्स चेक द कोड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, you can see they will not show an error. Why? Because I have declared here a pass statement. Okay, but if I am not using this pass statement here, at that time we must have to use a print statement. Okay, अगर आप यहाँ पर पास स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हो और प्रिंट स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हो, then at that time they will show an error. See, देखो यहाँ पर मैंने ना ही तो प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, ना ही तो मैंने पास स्टेटमेंट दिया है, एंड नाउ आई एम रनिंग दिस कोड। सी, दे विल शो एन एरर। सी हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप एरर देख सकते हो, दे विल थ्रो एन एरर। So if you don't want to give here print statement now, at that time at least you have to use a past statement here, because you cannot this statement keeping here empty, right? यहाँ पर आप empty नहीं रख सकते हो ये ब्लॉक को, so at that time you have to use a past statement here. So this all about Python if statement. I hope so this video is useful for you. Please like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए. Thank you.